Good morning students, I am your Farzana ma'am, your English teacher from St. Joseph Public School, and today I am going to begin with your first lecture of your textbook, that is your Honeydew, if you remember. And just if you have your book, open it along with me when I am reading, and it will be very interesting way of learning along with me with your book open in front of you. Instead of listening, okay, you can listen and go through the book which you have it in front of. Right now I have opened your book to the very first lesson, and there are some interesting things in this lesson. And what's the name of this lesson is with its interesting topic you have? It's your द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट जो है वो किसको मिला, किसने दिया, हु गेव इट. लेट्स फाइंड आउट बाय रीडिंग द स्टोरी. हियर वी गो. बिफोर यू रीड, you have to understand what they want us to do. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? If you don't know, we will come to know when we are doing our reading of the story. We will get the knowledge of this war. Do you know which events the dates below refer to? A. 4th July 1776, B. 17 December 1903, C. 6th August 1945, D. 30th January 1948, E. 12th April 1961, F. 20th July 1969. The answers are on page 23. So, you will get the answers on your page 23. We will read that later. First let's begin our story. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorched marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It will complete the reading first of this para, children. Let's go to the next page. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shadow space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small blank tin box. Cellotaped on to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915. To be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does.
Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. So children, we have read the first part of the story, and I will just explain you in my own words. So there is this person who is the character of this story, the main character. इन्होंने घूम रहे होंगे अपने आसपास, घर के आसपास, इनको एक जंक शॉप मिला, यानी कि कबाड़ी वाला दुकान जो होती है उसको जंक शॉप बोलते हैं हम, कबाड़िया की। यहाँ पर उन्होंने क्या देख लिया, कहाँ पर घूम रहे थे ये, ब्रिडपोर्ट में, एक रोड का नाम है, एरिया का नाम। उन्होंने कबाड़ी वाले के यहाँ क्या देखा, एक डेस्क देखा जिसको हम रोल टॉप डेस्क बोलते हैं, यानी कि उसमें ऐसे होते हैं डेस्क अंदर की तरफ जिसको हम निकाल के रोल आउट करके वो छोटे से डेस्क को बड़ा कर लेते हैं, फोल्डिंग जो बोलते हैं ना, फोल्डिंग डेस्क। तो ऐसा कुछ टाइप का था रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज रियल अर्ली 19th century। तो वो मैन जो हैं जो घूम रहे हैं ब्रिडपोर्ट के दुकान पे, जो मेन कैरेक्टर है, उन्होंने क्या बोला कि ये रोल टॉप डेस्क उनको कौन से ज़माने का लग रहा है, 19th century, और वो भी बहुत ही महंगी वाली लकड़ी का लग रहा है। कौन सी महंगी वाली लकड़ी, ओक, इट्स वेरी कॉस्टली। अगर हम फर्नीचर बनाने जाएंगे, एक छोटा सा कुर्सी चेयर भी बनाने जाएंगे ओक ट्री का, आजकल के ज़माने में भी ये अभी भी हमें महंगा ही पड़ेगा। इट्स वेरी कॉस्टली वुड वी गेट। आई हैड वॉन्टेड वन, ये हमारे मैन को जो है इनको ये सख्त ज़रूरत थी ऐसे रोल टॉप डेस्क की, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। तो नया ख़रीदने जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता उनको। तो दिस इज़ द वन, इन बैड कंडीशन था, बहुत बुरी हालत थी रोल टॉप डेस्क की, और वो टूटे फूटी थी इधर उधर से, सेवरल पीसेस में टूटा फूटा हुआ था। कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने टूट फूट उसकी, उसका एक जो लेग था क्लमजली मेंडेड, यानी कि बहुत बुरी तरीके से उसको किसी ने बनाने की कोशिश की थी। मेंडेड मतलब फिर से बनाना, टूट जाए और फिर उसको बनाएं तो उसको हम इंग्लिश में मेंडेड बोलते हैं। तो उसको रिपेयर जो किया था बहुत ही बुरे तरीके से किसी ने किया था, और उस डेस्क पे स्कॉच मार्क्स थे ऑल डाउन वन। तो स्कॉच मार्क्स यानी कि हम किसी चीज़ पे कोई पॉइंटेड चीज़ को रगड़ें, टेबल पे आपके खुद के ही फर्नीचर पे हम पॉइंटेड चीज़ से थोड़ा उसको रगड़ेंगे तो उस पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, उसको स्कॉच मार्क्स बोलते हैं। इट वॉज़ गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। तो वो जो कबाड़ी वाला था उनको बहुत ही चीप में दे रहा था वो। तो उन्होंने क्या सोचा, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको बना लूँगा, इट वुड बी अ रिस्क, रिस्क तो है लेना, बट वो चैलेंज रोल है कि उनको वो बना पाएंगे कि नहीं, पूरा उसको रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं, ये चैलेंजिंग रोल था मैन के लिए। आई हैड टू हैव इट, उनको ये ज़रूरी थी ये टेबल उनके काम के लिए, शायद वो लिखने का काम करते होंगे तो उनको ये डेस्क का बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो उन्होंने वो टूटा फूटा जो रोल टॉप डेस्क था वो कबाड़ी वाले आदमी से ले लिया और उन्होंने अपने घर के पास लाया। और घर के पास यानी कि जहाँ पर वो रहते होंगे, लिविंग रूम में नहीं रखा, कहाँ पर रखा, उन्होंने वर्क रूम में रखा। वर्क रूम कहाँ है उनका, एट द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे कोई वर्क रूम होगा, उधर उन्होंने वो टेबल को, वो रोल टॉप डेस्क को रख दिया और अब उसको बनाने की कोशिश में थे। आई बिगैन ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस के शाम के दिन उन्होंने उसको बनाने की शुरुआत की, वो रोल टॉप डेस्क को। तो क्रिसमस ईव जो होता है वो आपका 25th होता होगा, राइट। आई थिंक सो दिस विल बी द 24th ऑफ क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस की पहली वाली जो शाम होती है वो, फिर नेक्स्ट डे क्रिसमस होगा 25th। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉज, उन्होंने पूरा रोल टॉप डेस्क जो है पूरी तरह उसको निकाल दिया ताकि वो उसकी रिपेयरिंग कर सके। ओके चिल्ड्रन,
उसका जो वीनियर था, वीनियर क्या बोलते हैं हिंदी में, इससे सलमाई, वो सलमाई शीट जो मिलती है कलरफुल में, वाइट में भी बहुत सारे कलर्स में मिलती हैं, उसकी सलमाई भी जो थी बहुत जगह से निकली हुई थी, लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब तरफ से निकली हुई थी। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। उन्होंने देखा कि वो पानी से भी डैमेज हुआ था पूरा रोल टॉप डेस्क, और थोड़ी जगह पे जला हुआ भी था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, यानी कि पानी से भी वो थोड़ा उसका स्ट्रक्चर जो था बिगड़ा हुआ था, यानी कि फूली भी होगी लकड़ी, और थोड़ी जगह से जला हुआ भी था। द लास्ट ड्रॉ वॉज स्टक फास्ट, उनका जो लास्ट ड्रॉ जो निकाल रहे थे डेस्क से वो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था। स्टक मतलब उधर ही फिक्स था, निकाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, आई कुड ईज इट आउट जेंटली, उन्होंने बहुत ट्राई किया उसको निकालने की ईजी तरीके से ताकि वो और चीज़ें ना टूटें, बट इन दी एंड उनको एक बहुत ज़्यादा ज़ोर का झटके से उसको निकालना पड़ा। ब्रूट फोर्स मतलब बहुत ही गंदे तरीके से, ब्रूट मतलब वेरी हार्शली, ओके, और बहुत हार्शली उनको फोर्स करना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और उन्होंने ड्रॉ को निकालने के लिए उसके साइड में एक अपनी मुट्ठी भींच के हाथ की और उसको मारा, ओके। मुट्ठी से मारने से क्या हुआ, द ड्रॉ फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस। तो ड्रॉ तो निकल गया बट उसके पीछे उनको एक वो मिला, शैलो स्पेस मिला। शैलो मतलब एक हाथ जाए उतना तक उसका स्पेस था, ओके, यानी डीप नहीं था, शैलो था। डीप मतलब बहुत अंदर हाथ डालना पड़ेगा, शैलो मतलब थोड़ा सा ही हाथ डाल के वो निकाल सकते हैं जो भी उसके अंदर है। तो शैलो स्पेस अंडरनीथ, यानी ड्रॉ के नीचे की तरफ जो ड्रॉ निकला उसके नीचे की तरफ वो जो थोड़ा सा स्पेस था। अ सीक्रेट ड्रॉवर था, यानी उधर भी एक ड्रॉ था जो सीक्रेट होगा। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उनको कुछ लगा कि उधर कुछ है। उन्होंने हाथ बढ़ाया, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। अच्छा, रीडिंग में मैंने ब्लैक नहीं पढ़ा, ब्लैंक पढ़ा, सॉरी चिल्ड्रन, ओके। इन एंड टुक आउट द स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, तो उन्होंने हाथ अंदर डाल के और क्या निकाला, एक टिन बॉक्स निकाला जो ब्लैक कलर का था, और उस पर क्या था, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। एक नोट पेपर था जो सेलो टेप से चिपका हुआ था, ओके, ऑन टॉप ऑफ इट, और वो लाइन पेपर था, नोट पेपर जो है लाइन वाला था, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर कुछ लिखा हुआ था जो बुढ़े लोग जब लिखते हैं उनका हाथ शिवर होता है, तो ऐसी कुछ राइटिंग थी, या कोई वीक होगा, कोई बीमार होगा तो उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती है, वैसी राइटिंग में था लिखा हुआ। तो क्या लिखा हुआ था उस पर, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। तो उस पर ये सब लिखा हुआ था। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। तो ये सीक्रेट बॉक्स उन्होंने निकाला और उसके ऊपर जो नोट पड़ा ये इधर है डबल कोट्स में, कोटेड में, और फिर वो डब्बा खोलने वाले थे। He was about to open the box। उनको मालूम है कि कोई सीक्रेट चीज़ किसी की खोलनी नहीं चाहिए, बट जानकारी लेने के लिए क्यूरियोसिटी तो होती है ना, जिज्ञासा तो होती है हमें कि देखें तो उसमें क्या है। तो उस जिज्ञासा में, उस क्यूरियोसिटी में उन्होंने वो बॉक्स को खोल लिया। गॉट द बेटर ऑफ माई सरप्लस, इट यूजली डज। ये तो हर किसी में होता है कि उनकी जिज्ञासा थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी कि देखना है मुझे क्या है अंदर। अब उन्होंने खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। एनवेलप मिला उनको। उस एनवेलप पे एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकफेरसन, 12 कूपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। तो ये पूरा एड्रेस उन्होंने पढ़ लिया। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। उन्होंने लेटर निकाला और उसको अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा हुआ था लेटर, and dated at the top December 26, 1914।
So, this was the first part of your story, children. See what is the question they are asking in comprehension. What do you mean by comprehension? You know it. You read something and you answer the question related to your reading. What did the author find in a junk shop? Junk shop में क्या था, क्या मिला वो मैन को? The author, he is the author of this story. तो जंक शॉप में उनको एक रोल टॉप डेस्क मिला जो कौन से वुड का बना हुआ था? ओक का. Okay. Then second, what did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? उनको सीक्रेट ड्रॉवर जो लाए थे अपने वर्करूम में रखा, उस सारे ड्रॉर्स को निकाला. लास्ट ड्रॉ जब निकाला, when he removed the last drawer, he got a secret drawer. He moved a little hand inside that secret drawer, and for his surprise he got a tin box which was black in color. And who do you think had put it in there? तो हम assume कर सकते हैं ये जिसका ड्रॉ होगा नेचुरली वो उस पर्सन ने ही रखा होगा ये सीक्रेट ड्रॉ में अपना खुद का लेटर. Okay children, I'll wind up my explanation over here. We'll continue in our next lecture. Read the lesson, read this first part of your story and let me know if you haven't understood any part of it. Let me know, underline it and share it on my WhatsApp. Children, keep reading. Happy reading. Bye.